हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वी टीचिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं, वी आर कंटिन्यूइंग द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो आज हम लोग सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करने वाले हैं जिसका नाम है मोलैरिटी। It is denoted by capital M. So what is molarity? It is defined as number of moles of solute present in per liter of the solution। तो अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी इज नथिंग, इट इज जस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं तो मोलैरिटी इज ऑल्सो रीरिटन एज व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बेसिकली अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में नहीं है तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, if we have volume of solution in ml, just divide by 1000, so we get volume of solution in liters. So by this we can calculate the molarity of the solution. Now this can also be rewritten as number of moles of solute divided by volume of solution in liters. Now talking about units of molarity, units of molarity, it is equals to number of moles, units of number of mole is mole and volume of solution is in liters, so we get unit is mole liter inverse or mole per liter. So units are mole per liter, also mole liter inverse, also known as molar or small m, capital M. This all are the units of molarity. So इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, calculate the molarity, calculate the molarity of 4 gram of NaOH dissolved in 200 ml of solution। तो आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव गिवन अमाउंट of NaOH 4 gram. We have volume of solution 200 ml. We have to calculate the molarity. Molarity is number of moles of solute present in per liter volume of solution. How to calculate number of moles? Given mass divided by molar mass, volume of solution in liters divided by 1, but basically we have volume in ml, so volume of solution in ml just divide by 1000. Now given mass of solute is 4 gram, molecular mass of NaOH is 40, volume of solution is 200 डिवाइड बाय 1000. ये ml हमारा लीटर्स में कन्वर्ट हो चुका है. नाउ 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 10 जा 10 जा 10 जा comes out to be 1/2. So this is 0.5 mole per liter. This is the molarity. Or we can also read as 0.5 capital M molar. What does it mean? 0.5 capital M. 0.5 molar means 0.5 mole of NaOH is present in 1 liter of solution. तो बेसिकली मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सो हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.4 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट है. तो इसको आप नोट कर सकते हैं. Let us try one more question. Calculate the molarity of 5.3 gram of calculate the molarity of 5.3 gram of Na2CO3 present in 100 ml of solution. Molecular mass of Na2CO3 is 106 gram. So इस क्वेश्चन को भी हम ट्राई कर सकते हैं. Now given mass of solute is Na2CO3 5.3, volume of solution is 100 ml. Molarity is given mass of solute divided by molecular mass of solute divided by volume of solution in liter, but here we have volume of solution in ml. So given mass is 5.3, molecular mass is 106, volume of solution is 100, divide by 1000. So decimal 0, 1000 cancel out, 53 1 2, this is 1/2, so comes out to be 0.5 mole per liter. This is the answer. So by using this formula we can calculate the molarity of the solution. So moving further, the next concentration term is molality. हमारे पास थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी.
it is denoted by small m. So what is molality? It is defined as number of moles of solute present in per kg of the solvent. तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या फ़र्क होता है. मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. वहाँ पर जब हम वॉल्यूम लेते हैं तो वो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है. लेकिन मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है एक केजी सॉल्वेंट के अंदर, दिस इज मोलैलिटी. सो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू number of moles of solute present in weight of solvent in kilogram. How to calculate number of moles? Given mass of solute divided by molecular mass of solute, weight of solvent in kg डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में तो ऊपर 1 रहेगा. और अगर हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास ग्राम्स में है तो जस्ट डिवाइड बाय 1000, इट विल कन्वर्ट इनटू kilograms. So by using this formula we can calculate the molality. Now what are the units of molality? नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है हमारे पास? मोल. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सो दिस इज मोल पर केजी और मोल केजी इनवर्स और स्मॉल m और मोलल. सो दिस ऑल आर द यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी. तो इसको आप नोट कर सकते हैं. तो इसके ऊपर भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट मोलैलिटी. तो मोलैलिटी के ऊपर हम क्वेश्चन देख सकते हैं. जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 20.7 gram of potassium carbonate dissolved in 500 ml of solution. Density of solution is 1 gram per ml. सो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. हमारे पास है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 20.7 ग्राम. वी ऑल्सो हैव वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml. We also have density 1 gram per ml. So density is equals to mass by volume, which implies mass is equals to density into volume. Density is 500 ml
volume is 1 gram per ml, ml cancel, this is 500 gram. So we have solution 500 gram. Now how to calculate molality? Molality is number of moles of solute present in weight of solvent in kg. So number of moles of solute हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. How to calculate number of moles? Solute is K2CO3, given mass 20.7, molecular mass is 138, comes out to be 0.15. So this is the number of moles. How to calculate weight of solvent? We know weight of solution किसके बराबर होता है? Weight of solute plus weight of solvent. सॉल्यूशन कितना है हमारे पास? 500. सॉल्यूट कितना है हमारे पास? 20.7 प्लस यहाँ से हम वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो 500 माइनस 20.7 कम्स आउट टू बी अराउंड weight of solvent comes out to be minus 500 minus 20.7, this is 479.3 gram. So this is the weight of solvent in grams. Now just calculate molality. Now what is molality? Number of moles of solute present in weight of solvent in kg. अगर हमारे पास weight of solvent ग्राम में है, just डिवाइड बाय 1000, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा. ऑन सॉल्विंग वी गेट अराउंड डेसिमल 100 अराउंड 0.313 मोल पर केजी. सो दिस इज द मोलैलिटी. सो इस तरीके से हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. Now the next concentration term is mole fraction. So व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, ए एंड बी. हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट? सो मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय सिंबल एक्स. मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. सो हम लोग मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट present in solution. Similarly हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. तो यहाँ पर हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1. किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता, हमेशा उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी. मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन 1. और एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सॉल्यूशन इन विच ए, बी, C up to so on Z components are present. So how to calculate mole fraction of A? Mole fraction of A is number of moles of that component divided by total number of moles
of component present in solution. अगेन यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास A to Z कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पर भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस अप टू सो ऑन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ Z किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा. जितने मर्जी कंपोनेंट हो एक सॉल्यूशन के अंदर, उन सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल आता है. तो बेसिकली यहां से अगर हमें एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट. अगर हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट है तो अगर हमने एक का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया है तो अगर हम उसको 1 में से माइनस कर दें, वी विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट. सो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन. सो क्वेश्चन है जैसे हमारे पास अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by adding 60 gram of methanol in 120 gram of water. Calculate mole fraction of each component. सो इसको आप ट्राई कर सकते हैं किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को. सो वी हैव अमाउंट ऑफ मिथेनॉल 60 ग्राम, वी हैव अमाउंट ऑफ water 120 gram. Now how to calculate mole fraction of methanol? Number of moles of methanol divided by number of moles of methanol plus number of moles of water. Now just calculate number of moles of methanol. Number of moles of methanol is given mass. Methanol is carbon 12, 3, 15 plus 16 plus 1. This is around 32. So comes out to be 1.8 approx. Now how to calculate number of moles of water? So amount of water is 120, given mass is 120 divided by molar mass of water is 18. So 960,320 comes out to be 6.6 mole. Now just put the values. Number of moles of methanol is 1.8, number of moles of methanol is 1.8 plus number of moles of water is 6.6. So this is 1.8 divided by 8, 6, 14.6 plus 1 that is 8, 10, 10 cancel out. So mole fraction of water comes out to be, mole fraction of methanol comes out to be around 0.22. So this value is less than 1. Mole fraction is always, mole fraction of any component is always less than 1. उसकी वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होती है. नाउ इस सॉल्यूशन में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट थे, तो हमें पता है अगर 2 ही कंपोनेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा. हमारे पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है किसका? वी हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल 0.22 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा यहाँ पे? 1 माइनस 0.22. सो दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 0.78. सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. सो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. So next concentration we have normality. Now this is
fifth concentration term, normality. It is denoted by capital N. So normality is defined as number of gram equivalent of solute present in per liter of the solution. सो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में इतना ही फर्क है कि मोलैरिटी क्या होती है, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नॉर्मेलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in volume of solution in liters. So how to calculate number of gram equivalent? So number of gram equivalent निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, so gram equivalent is equals to given amount of solute divided by equivalent mass of solute. Now how to calculate equivalent mass? So equivalent mass is equals to molecular mass divided by valency factor. This is known as valency factor. Now how to calculate valency factor? So जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो हर किसी कंपोनेंट के लिए अलग अलग होता है. तो जैसे अगर हम बात करें किसी एसिड की, तो अगर हम वैलेंसी फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो वैलेंसी फैक्टर में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स की, तो फॉर एसिड्स वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड. इसका मतलब क्या हुआ बेसिसिटी ऑफ एसिड का, कि नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एसिड, कि जो हमारा एसिड है वो कितने H+ आयन दे रहा है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं HCl की, HCl विल गिव H+ एंड Cl-. सो हाउ मेनी H+ आयन, ओनली 1. सो वैलेंसी फैक्टर फॉर HCl इज 1. अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, सो इट विल गिव 2H+ एंड SO4 -2. सो हाउ मेनी H+ आयन वी आर गेटिंग, 2. सो वैलेंसी फैक्टर इज 2. सो इस तरीके से हम किसी भी एसिड का वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं. सेम अगर हमारे पास कोई बेस है, अगर वी हैव एनी बेस, सेकेंड अगर हमारे पास कोई बेस है, तो बेस के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है. वैलेंसी फैक्टर फॉर बेस इज एसिडिटी ऑफ द बेस. व्हाट इज एसिडिटी ऑफ बेस, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन बाय बेस, कि जो हमारा बेस है वो कितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव NaOH, तो NaOH ऑन डिसोसिएशन विल गिव Na+ एंड OH माइनस. हाउ मेनी OH नेगेटिव आयन, वी हैव ओनली 1. सो वैलेंसी फैक्टर इज 1. वी हैव CaOH होल ट्वाइस अनदर बेस, इट विल गिव Ca+2 एंड 2OH -1. सो वैलेंसी फैक्टर वी हैव इज 2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 OH नेगेटिव आयन है. सो बेस के लिए हम इस तरीके से वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एनी सॉल्ट, अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है, तो अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव NaCl, तो फॉर सॉल्ट जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है,
number of charge present on metal ion, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल आयन, कि जो भी हमारा सॉल्ट है उसमें जो भी मेटल आयन होगा उसकी जो भी पॉजिटिव वैलेंसी होगी उसी को वैलेंसी फैक्टर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl ऑन डिसोसिएशन विल गिव Na प्लस एंड Cl माइनस। सो ये हमारा मेटल है तो उसके ऊपर क्या चार्ज है, +1, सो वैलेंसी फैक्टर इज +1। अगर हम बात करें हमारे पास है CaCl2, CaCl2 विल गिव Ca +2 एंड 2Cl -1, सो मेटल के ऊपर कितना पॉजिटिव वैलेंसी है, 2, सो वैलेंसी फैक्टर इज 2। तो किसी भी सॉल्ट के लिए हम इस तरीके से वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ये रिकग्नाइज करना है कि आपके पास एसिड है, बेस है, सॉल्ट है या फिर कोई आयन है। अगर हमें कोई आयन दे दिया जाए तो फॉर एनी आयन, आयन के लिए वैलेंसी फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर आयन वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन द स्पीशी, उस स्पीशी के ऊपर कितना चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव Cl -1, सो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि चार्ज ऑन द स्पीशी इज 1। इफ वी हैव सल्फेट SO4 -2, तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, बिकॉज चार्ज ऑन द स्पीशी इज 2। प्लस है माइनस है उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारे पास H प्लस है सो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, +1। अगर हमारे पास Al +3 है तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, +3। सो किसी भी आयन के लिए हम इस तरीके से वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम लोग एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास, चलो इसको नोट कर लो। इसके ऊपर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और रीअरेंज कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले को और सिंपल कैसे किया जा सकता है। सो नाउ नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नाउ हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। सो इस फॉर्मूले को हम और रीअरेंज कर सकते हैं, दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट divided by, how to calculate equivalent mass, molecular mass divided by valency factor। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर हम ध्यान दें तो बेसिकली ये हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला बन चुका है नॉर्मेलिटी का। अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको किससे डिवाइड कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो जस्ट डिवाइड दिस थिंग बाय 1000, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। सो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मेलिटी। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी of 4 gram of NaOH is present in 100 ml of solution।
तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारे पास, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो ऊपर 1000 लग जाएगा, मल्टीप्लाई विद वैलेंसी फैक्टर। सो हमारे पास गिवन मास है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 4, मोलर मास इज 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100, 1000 से मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, NaOH इज अ बेस, ये हमारे पास एक बेस है, तो ये अपने डिसोसिएशन पर क्या देगा, Na प्लस और OH माइनस। तो किसी भी बेस के लिए कितने OH नेगेटिव आयन वो रिलीज कर सकता है, वही उसकी वैलेंसी फैक्टर होती है। तो वैलेंसी फैक्टर इज 1, सो जस्ट पुट 1 हियर, सो 20 20 10 10 1 1, so this comes out to be around, normality is 1 normal. So this is नॉर्मेलिटी। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या होंगी नॉर्मेलिटी की, यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी। तो हमें पता है यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी, हमें पता क्या होता है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इट इज ग्राम इक्विवेलेंट, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय volume of solution in liters. So units are gram equivalent liter inverse. So these are the units for normality. इस तरीके से हम किसी की भी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज, तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज पार्ट्स पर मिलियन। सिक्स्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in millionth part of the solution। तो जैसे मान लो किसी भी कंपोनेंट का अगर हम ppm निकालना चाहते हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ दैट कंपोनेंट, अमाउंट ऑफ दैट कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने ए ले रखा है, ए कोई कंपोनेंट है हमारे पास, प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियनथ पार्ट, इसके मिलियनथ पार्ट में, इसके मिलियनथ पार्ट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन। सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो अमाउंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। सो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट पार्ट्स पर मिलियन। Basically this concentration term is used for trace amount which are present in very minute quantities. So this concentration term is used for minute quantities, minute मतलब जो बहुत small proportion में, which are present in very small amount in atmosphere, like pollutants। तो पॉल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पीपीएम टर्म का इस्तेमाल किया जाता है कि कितना पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है पूरे इन्वायरमेंट के मिलियनथ पार्ट में।
ठीक है ना। तो हम जो पॉल्यूटेंट कैलकुलेट करते हैं वो मिलियनथ पार्ट में कैलकुलेट करते हैं कि उस मिलियनथ पार्ट में कितना हमारा पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है। सो इस तरीके से हम किसी भी ppm कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज स्ट्रेंथ। तो लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारे पास सेवेंथ, दैट इज स्ट्रेंथ। हाउ टू कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन? सो स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज amount of solute present in per liter of the solution, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको बोला जाता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इस तरीके से हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो अमाउंट किस में होता है हमारे पास? ग्राम, एंड वॉल्यूम इज इन लीटर्स। सो दिस इज ग्राम लीटर इनवर्स। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, next is relation between strength and molarity। मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है? तो बेसिकली व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liters. This is strength. And what is molarity? Molarity is given mass of solute divided by molecular mass of solute present in volume of solution in liters. अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो ये चीज हमारे पास क्या होती है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो ये हमारे पास क्या होती है? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हमारे पास कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म अवेलेबल है लाइक स्ट्रेंथ, तो वहां से हम डायरेक्टली मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। Just divide the strength by molecular mass, we get the molarity of the solution। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है स्ट्रेंथ और मोलैरिटी के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है? सो व्हाट इज normality? So normality is given mass of solute divided by molecular mass of solute, volume of solution in liters multiply by valency फैक्टर। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, दिस होल थिंग गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दिस इज मोलैरिटी। सो वी कैन रिप्लेस दिस टर्म विद मोलैरिटी। सो वी गेट नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड विद वैलेंसी फैक्टर। अगर हम
मोलैरिटी को वैलेंसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट डायरेक्टली नॉर्मेलिटी। सो अगर हमें किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है तो हम उसके वैलेंसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू।